بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی کا طوفان. چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، گلستان، جنگل پیر علی زئی، سرانان، نوشکی، دالبدین میں طوفان سے درخت اکھڑ گئے. کئی مقامات پر دیواریں منہدم. کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں بارش. نوشکی میں طوفانی بارش اور ژالہ باری. ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی صورتحال کا خدشہ. انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا. سوراب اور پشین میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی بادل برس پڑے. کراچی، سکھر اور لاڑکانہ سمیت سندھ میں کل سے بادل برسنے کی پیش گوئی. مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، ڈی جی خان، بھکڑ، لیا اور ملتان میں آندھی اور لاہور سمیت بعض مقامات پر کل بارش کا امکان. عید پر بھی غم. اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں کی آنکھ نم. کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور ماں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹا چھین لیا. گلشن اقبال میں اے ٹی ایم سے پیسے لے کر نکلنے والا 3 بچوں کا باپ فائرنگ سے جاں بحق. موٹر سائیکل سوار لٹیرے 35 سالہ تراب زیدی کو سر پر گولی مار کر فرار. سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز پر. مقتول کی انچولی میں نماز جنازہ ادا. رواں سال لوٹ مار کے دوران قتل کیے گئے شہریوں کی تعداد 61 ہو گئی. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 8 میں فائرنگ سے زخمی ایک شخص دم توڑ گیا. دوسرا اسپتال میں زیر علاج. پولیس حکام کہتے ہیں کہ جائے وقوع سے پلاسٹک کی پسٹل کے ٹکڑے اور 9mm پسٹل کے 2 خول ملے. شبہ ہے موٹر سائیکل سوار افراد نے کار کو روکنے کی کوشش کی تھی. بیٹے کے بعد باپ کا قتل. لانڈھی ریڈی گوٹ میں فائرنگ سے 55 سالہ سماجی کارکن غلام نبی جاں بحق. مقتول بیٹے کے قتل کیس کی پیروی کر رہا تھا. پولیس کو 4 حملہ آوروں کی تلاش. ورثا کہتے ہیں بیٹے کے قاتل انہیں بھی دھمکیاں دے رہے تھے. ہوائی فائرنگ کرنے سے منع کیوں کیا؟ فیصل آباد کے تھانہ ٹھیکری والا کی حدود میں ملزمان نے 35 سالہ شہری کو قتل کر دیا. وحید موقع پر جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے. ملزمان فرار. مقتول کے بھائی نے 7 افراد کے خلاف پرچہ کٹوا دیا. عید پر بیٹی باپ سے ملنے نہ آئی. موت کی خبر آ گئی. لاہور کے غازی آباد میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر گلا دبا کر بہو کو قتل کر دیا. مقدمہ درج. شوہر سمیت 2 افراد گرفتار. ورثا کہتے ہیں شہر بانو اسپتال لانے سے 2 گھنٹے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی. مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ چونیا میں نواحی برج رنگ سنگ کے قریب ناکام عاشق نے محبوبہ کو شادی کرنے پر قتل کر دیا. مقتولہ کبرا بی بی عید ملنے والدین کے پاس آئی. ملزم کاشف نے فائرنگ کر کے جان لے لی. ملزم موقع سے فرار. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. حیدرآباد میں المناک حادثہ. لطیف آباد 8 نمبر کے فیملی پارک میں بچی پانی کے کنویں میں گر کر جاں بحق. 5 سالہ بشرا والدین کے ساتھ تفریح کے لیے آئی تھی. عید کی مٹھائی راس نہ آئی. جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ایک خاندان کے 7 افراد بے ہوش. اسپتال میں زیر علاج. 3 متاثرہ افراد کی حالت تشویشناک. مٹھائی کی دکان کا مالک گرفتار. عوام نے مہنگائی بھلا دی. چھوٹی عید پر بڑے مزے. تفریحی گاہوں پر رش. بچے 2 دن جمع کی گئی رقم خرچ کر کے والدین کی جیبیں خالی کرانے میں مصروف. کوئی خطرناک جھولوں کے مزے لیتا رہا تو کسی نے ٹرین میں سفر کیا. سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کر لیا. 2 روز میں 1,74,000 افراد سیاحتی مقامات پہنچے. گرم علاقوں سے آئے افراد کاغان ویلی کے ٹھنڈا ٹھار موسم سے لطف اندوز. کے پی کے کا گورنر ہاؤس فیملیز کے لیے کھول دیا گیا. عید کی خوشیاں دوبالا. جھولے اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز پر رش. بچوں کی گول گپوں میں دلچسپی. وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں عید ملن پارٹی. مراد علی شاہ کے مختلف کونسل جنرل سے ملاقاتیں. غیر مسلم سفارتکاروں نے عید کو محبتیں بانٹنے کا تہوار قرار دے دیا. کراچی میں عید سیزن بری طرح فلاپ. خریداری 40% تک محدود. 70% مال گوداموں میں پڑا رہ گیا. ادھار پر لیے گئے مال کی ادائیگی کے لیے لالے پڑ گئے. تاجروں نے 2024 کو کاروبار کے اعتبار سے 75 برس کا مایوس کن سال قرار دے دیا. چیئرمین آل کراچی اتحاد کہتے ہیں 90% خریداروں کی دلچسپی سستی اشیاء میں رہی.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरा अमरीका, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ तयशुदा मुलाकातों से आगाह किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। पशीन से एहतजाजी तहरीक की तैयारी मुकम्मल। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और जमात इस्लामी की क़यादत कोयटा पहुँच गई। जलसा कल होगा। उमर अयूब कहते हैं इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। PDM2 की हुकूमत कबूल नहीं। ईद के बाद कराची में सियासी पारा होगा हाई। JUI और PTI ने जलसों और रैली के लिए तैयारी कर ली। PTI 28 अप्रैल को कराची में जलसा करेगी। बहादुराबाद, चार मीनार से मज़ार कायद तक रैली निकाली जाएगी। रैली में बानी PTI की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम 2 मई को कराची में पंडाल सजाएगी। खैर अफजल मरवत फुल टाइम मूड में गाने के बोल सुनाए और ये भी बता दिया कि बच्चे तो गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं सुनती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रमज़ान पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम। नोटिस ले लिया। हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब। ड्रामेबाजियां और रंगबाजियां PTI पर खत्म। अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर ने पहले रमजान पैकेज पर अपनी तस्वीरें शाया कराई, अब खुद ही इस पर भरमी का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो अब खत्म हो चुकी, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं, जिसका चेयरमैन और इंतखाबी निशान नहीं, उसको मखसूस नशिस्त मिल ही नहीं सकती। पंजाब में तलबा के लिए ईद गिफ्ट, 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई-बाइक्स की बिला सूद फरहमी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक दी जाएंगी। 29 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर को कूड़ा करकट से पाक करने की डेडलाइन खत्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का 3 शिफ्टों में काम। रोजाना 4 से 6 टन कचरा ठिकाने लगाया जाने लगा। शहरी कहते हैं सड़कें और शाहराएं साफ हो गई हैं, गली मोहल्लों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। IMF की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई। पाकिस्तान मुमकिना फॉलो अप प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत कर रहा है, जबकि अहम मसाइल हल होना बाकी हैं। तेज रफ्तारी जानों पर भारी। ईद के 3 दिन पंजाब में 4,500 हादसात, 25 अफराद जाँ बहक, 2,500 जख्मी। लाहौर में 770, फैसलाबाद में 288, मुल्तान में 256 और गुजरावाला में 245 हादसात रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी की मकली के गांव कासिम जोखियो आमद। दरगाह शाह नूरानी जियारत के लिए जाते हुए हादसे में जाँ बहक 18 अफराद के वर्सा से मुलाकात, इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। अली हसन जरदारी बोले सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तौर पर आपके पास भेजा है। हुकूमत जाँ बहक अफराद के अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। हमारी स्कूलिंग जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 16 ईयर्स तक इसकी जो एजुकेशन है वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसकी फीसेस देगी और इसको पढ़ाएगी। जहाँ जो भी ये पढ़ना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इसकी पढ़ाई जो है वो हमारी जिम्मेदारी होगी। नन्हे टिकटॉकर अबू बकर के दिन फिर गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम तालीमी अखराजात उठाने का वादा कर लिया। MNA जमाल रईसानी ने भी कम सिन से मुलाकात की। गजा में ईद के मौके पर भी सोग, सिहोनी फौज की दरंदगी। रफा, मरकजी गजा, जबालिया और नसीरात कैंप पर फिजाई और ड्रोन हमले, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 33,650 तक जा पहुंची। हमास ने कहा है कि मुस्तकबिल जंगबंदी और मुकम्मल इसराइली फौज के इनखला तक मुआहिदा नहीं होगा।
हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों और दीगर शहदा की मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा। जमात इस्लामी सिंध के सरबराह मोहम्मद हुसैन मेहंदी कहते हैं, हम फ़लस्तीन में जिहाद के लिए तैयार हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्माइल हानिया के नाम ताज़ियती ख़त। बेटों और पोतों के इसराइली हमले में शहादत की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने लिखा, जिहाद में हमास के इक़दामात की तायीद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को टेलीफोन। बेटों और पोतियों की शहादत पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत। कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस्माइल हानिया और हमास के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वो उनकी हिमायत और उनके साथ यकजहती जारी रखेंगे। हम ईरानी सिफारतखाने पर हमले में मुलव्विस नहीं, सर पर मंडलाती जंग देखकर अमेरिका एक कदम पीछे हट गया। एंटनी ब्लिंकन के तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राबते। वाज़े किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइल पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल अहलियान ने जर्मनी, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया है कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइल हमले का रद्द-ए-अमल कानूनी और जायज़ होगा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से आलमी सतह पर नफरत में इजाफा। ये सूरत हाल न सिर्फ बाइस तशवीश है बल्कि ये किसी के मफाद में भी नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने खबरदार कर दिया। कहा कि बदकिस्मती से यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के मफाद में है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने का इसके सिवा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। फास्ट बॉलर एडम मलन और फिन एलन अनफिट। टॉम बिलिंटन और जॉक फॉक्स टीम में शामिल। कीवी टीम T20 सीरीज खेलने के लिए इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल को होगा। चांद पर तजुर्बात के लिए अमरीकी माहिरीन ने खुसूसी रोबोट तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयार करदा रोबोट रेत, बर्फ, पथरीले रास्ते और नाहमवार जमीन पर महारत के साथ नॉन स्टॉप चल सकेगा। और अमरीकी मारूफ गुलकारा, नगमा निगार और अदाकारा लेडी गागा की बॉयफ्रेंड माइकल पोलांस्की के साथ मंगनी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेडी गागा की मंगनी की अफवाहों ने उस वक्त जन्म लिया जब गुलकारा को हाल ही में एक बड़े से हीरे की नई अंगूठी पहने हुए देखा गया।